Good morning, students. Good morning, sir. Morning, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. So whatever we did yesterday, उसमें किसी को डाउट है कुछ? सर कल आपने क्वेश्चन दिया था सर, वो हुआ नहीं सर, करवा दी। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? So that fx equal to 1 by x is uniformly continuous on a comma b for any a Yes. greater than Show 0. that fx equal to 1 by x is uniformly continuous on a comma b, या क्लोज्ड भी रख सकते हो, ठीक है, जैसे भी रखना चाहो। a comma b for every a greater than 0 and a less than b, ठीक है। So we have to show that, क्या शो करना होगा हमें? To show f is uniformly continuous on AB। इसके लिए क्या शो करना होगा? डेफिनेशन क्या होती है यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन की, बताओ। 4x greater than 0 there exists certain greater that mod x minus 2 where u belong to a is smaller than delta then For each epsilon greater than 0 there exists delta, and this depends only on epsilon greater than 0, such that for any xy belonging to the domain x minus y less than delta implies fx minus fy is less than epsilon. So this is the definition of continuity, right? Definition of uniform continuity. So हमें ये शो करना है. So what we will take any arbitrary epsilon. So let epsilon greater than 0 be any real number. Then what we have to do? We have to find delta greater than 0. This should depend only on epsilon, ठीक है, such that for any xy belonging to AB, x minus y less than delta should imply fx minus fy to be less than epsilon, right? ये शो करना में we have to find some delta greater than 0 so that for any xy belong to AB, x minus y less than delta should imply fx minus fy less than epsilon. So what we will do, we will start with fx minus fy. So consider fx minus fy. This will be equal to 1 by x minus 1 by y. So when you will take the LCM, so this will be x minus y upon mod x mod y. So both x and y are greater than a. So if I will replace mod x by a and mod y by a, then I will get this is less than equal to, in fact this will be strictly less than, because x is not equal to a. This is strictly less than 1 by a square mod x minus y, since x is strictly greater than a and y is strictly greater than a, right? So this we want less than epsilon. So what delta we should choose? a square epsilon. Let delta equal to a square epsilon, which is greater than 0. ठीक है? So delta is equal to a square epsilon, which is greater than 0, and this depends only on epsilon. It is not depending on the points x and y, right? So this delta depends only on the epsilon. Then it is, सर यहाँ एक्सपीरियंस सर, हाँ हाँ सर जो कंटिन्यूस की डेफिनेशन होती है उसमें सर जब वो प्रूव करते हैं तो मिनिमम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मिनिमम ही तो लिया है, मतलब क्या कह रहे हो?
नहीं, यहाँ पे वहां पे कंटिन्यूस में मिनिमम इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास वो हम एक जब एक्स्ट्रा कंडीशन लेते हैं ना तब लेते हैं ना, जब ये एक्स्ट्रा कंडीशन लेते हैं। अभी तो हमने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन ली नहीं, अगर लेंगे तो वो भी लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा लिया नहीं ना अभी कंडीशन। जब नहीं लेते हैं तो हम ऐसे ही तो चूज करते हैं, फिर वहां पे भी बस। यहाँ पे क्या है, वहां पे कई बार क्या होता है, हम किसी सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे अगर 1/x वाला याद हो, इसमें हम, इसमें नहीं, किसमें, इसमें आता है ना, सी के कॉरस्पॉन्डिंग आता है इसमें, राइट। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रूव करते हैं हम इसमें, तो डेल्टा जो है हमारा सी के रेस्पेक्ट में आता है। तो इसलिए वो जीरो पे नहीं हो रहा था। अगर जीरो होता यहाँ पे तो हम इसे रिप्लेस नहीं कर पाते ना, फिर हमें सी के रिस्पेक्ट में काम करना होता। अगर यहाँ पे, अगर ये इंटरवल 0 to b होता तो हम ये a से रिप्लेस नहीं कर पाते, तो हमें कुछ c के रेस्पेक्ट में करना होता, तो डिपेंडिंग ऑन c आ जाता है कि कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, इसलिए वो कंटिन्यूस हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होता। सो देन इट इज क्लियर दैट x minus y less than delta implies fx minus fy is less than epsilon. Hence f is uniformly continuous on a to b. Clear? Okay. Yes, sir. Now we have one result, simple result. Every uniformly continuous function is continuous, but converse is not true in general. चलो प्रूफ बताओ इसका कि every continuous function is uniformly is continuous. Let a be contained in R, f be a function from a to R, f from a to R be uniformly continuous function on a. ठीक है, so what we have to show, f is continuous on a. So this is what we have to show, f is continuous on a. So क्या करोगे इसको शो करने के लिए? Let x comma c belong to a. x comma c नहीं, we have to take any arbitrary point in c. So let c belong to a be any point. फिर हम शो करेंगे ना कि f is continuous at c. ठीक है, so continuity on a को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? We have to show that f is continuous on every point of a. So we are taking any arbitrary point of a and we will show that f is continuous at c. So अब क्या करेंगे? f को continuous at c शो करने के लिए क्या करना होता है? Yes, and let epsilon greater than 0 be any real number. So what we have to do, we have to find delta greater than 0 such that x minus c less than delta should imply fx minus fc less than epsilon. So this we want. Now as f is uniformly continuous on a, so for above epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that क्या हो जाएगा, x minus y less than delta should imply fx minus fy less than epsilon for any xy belonging to a. ठीक है, so this is our a. इससे ये कैसे आएगा? In particular Yes. So consider x minus c less than delta. Then what does this imply?
fx minus fc is less than epsilon from a. ठीक है, अगर x माइनस सी लेस देन डेल्टा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो fx माइनस fc लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. So hence f is continuous at c since c belong to a. हाँ, y equal to c ले लिया, ठीक है. So since c belong to a is any arbitrary point, so क्या हो जाएगा, f is continuous on a. So this completes the proof. अब हमें एग्जाम्पल देना है, ठीक है. So proof is complete. Now we have to give an example that converse is not true. Converse मतलब कि a continuous function need not be uniformly filled. Example बताओ. A continuous function which is not uniformly continuous. 1 by x. Yes, अभी हमने करा है. So f from 0 to infinity to r as fx equal to 1 by x for all x belonging to 0 to infinity. Then f is not uniformly continuous on 0 to infinity. Why? हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी डन. बट f is वहां पे प्रूव कर देना एग्जाम में, ठीक है. f is continuous on 0 to infinity, ये भी ऑलरेडी कर, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है. सो ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ठीक है. अगर सर f is from 2 to infinity to r, then sir it is uniformly continuous. Yes, if f is from 2 to infinity to r then it is uniformly continuous. कोई भी a greater than 0 सेम प्रूफ आ जाएगा जो वो करा है अभी हमने, ठीक है, क्योंकि हमने b का कुछ भी यूज नहीं करा है इसमें. देखो इस प्रूफ में we have not used b anywhere, b का कुछ भी यूज नहीं है, a का ही यूज है. तो वही सेम प्रूफ आ जाएगा पूरा, ठीक है. क्योंकि x ग्रेटर देन 2 कर दोगे यहाँ पे, सो ये 4 आ जाएगा 1/4, so एप्सिलॉन तुम्हारा हो जाएगा 4 एप्सिलॉन, ठीक है ना. तो कुछ भी हो इंटरवल, अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हो 0 की जगह तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा. 0 लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. अगर 0 की जगह कोई और पॉजिटिव नंबर ले लोगे तो इट विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. क्लियर है सबको? ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. Show that fx equal to x square on 0 to b is uniformly continuous. चलो ये इसका प्रूफ बताओ मुझे. How we should start? Let epsilon greater than 0 be any real number. Okay, then all x comma y. so we have to find delta greater than 0 such that for any xy belonging to 0 to b, x minus y less than delta should imply fx minus fy less than epsilon. So this is what we want. So how we shall start? Consider for any xy belonging to 0 to b, fx
minus fy. Okay, so what is this? x square mod x square minus y square. Mod x square minus y square. Mod x minus y. This is mod x plus y. mod x plus y, mod x minus y, right? Then It is smaller than equal to mod x minus mod y. x plus mod y x minus y, right? अब क्या करेंगे हम? हमें लेस करना है इसे, तो ये किससे लेस होगा? तो ये b से लेस, so this is less than equal to b plus b mod x minus y. Why? Because since x is less than b and y is also less than b. ठीक है, right? And both are positive, so mod की जगह b आ जाएगा. ठीक है, so this is equal to 2b times x minus y. So what delta we should choose? Delta equal to epsilon by 2b. Yes. So let delta equal to epsilon by 2b. So this is greater than 0. So then it is clear that for above delta greater than 0, for any xy belonging to a x minus y less than delta implies fx minus fy is less than epsilon. So hence f is uniformly continuous on 0 to b. ठीक है, so ज़्यादातर केसेस में हम क्या करेंगे? We will try to find some constant k such that fx minus fy. So ज़्यादातर केसेस में हम ये करेंगे, we will try to convert this fx minus fy into some constant k times x minus y. ज़्यादातर ये करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई k ले लेंगे. ठीक है ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये काम कर जाता है ये स्टेप, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये काम नहीं करेगा. ठीक है, so in most of the questions we will try to convert this into this form and then we will take delta equal to epsilon by k. But in some cases, some questions, this will not work because we will not be able to find any k so that this condition is satisfied. So what does this theorem say? If I is closed in bounded interval and f is continuous on I, then f is uniformly continuous on I. So we have already observed that every uniformly continuous function is continuous, but a continuous function need not be uniformly continuous. But if I take the interval to be closed and bounded, then continuous function implies uniformly continuous. Okay, so statement is clear to everyone that if f is a function defined on a closed and bounded interval and it is continuous, then it should be uniformly continuous on the interval. So statement is clear to everyone? Yes, sir. Okay, so let us prove this result. So given is I is closed and bounded. So let I equal to A भी ले लिया and f from I to R is continuous function. Okay, so to show f is uniformly continuous on I. So how we should start? We will start with the contrapositive approach. Okay, so we will assume, suppose on the contrary f is not uniformly continuous on I. तो फिर क्या होगा? अगर f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, उससे क्या आएगा? बाय नॉन यूनिफॉर्म
कंटिन्यूटी क्राइटेरिया, उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, देयर एग्जिस्ट epsilon naught greater than 0 and two sequences xn and yn in I such that क्या हो जाएगा, mod xn minus yn limit n tends to infinity xn minus yn is 0 and fxn minus fyn is greater than equal to epsilon naught. Clear? So this was from the non-uniform criteria, because if f is not uniformly continuous, then we will be able to find some epsilon naught greater than 0 and two sequences xn and yn such that this condition is satisfied. xn कहाँ पे है, I में, और I क्या है, closed and bounded. So क्या होगा, now as xn is a sequence in I and I is closed and bounded, so what does this imply, xn सीक्वेंस है I के अंदर और I क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो xn के बारे में क्या कह सकते हैं, xn is bounded. xn is a bounded sequence. yes, और अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उससे क्या इंप्लाई होगा, बोल्जेनो-वेस्टरस प्रॉपर्टी से, by बोल्जेनो-वेस्टरस प्रॉपर्टी xn has a Subsequent. convergent subsequence, xn has a convergent subsequence से xn के, ठीक है, तो एक हमारे पास एक सबसीक्वेंस आ गया xn के, so let xn के converges to some c मान लो, yes, तो c कहाँ पे बिलोंग करेगा, xn के सीक्वेंस है I के अंदर और I क्लोज्ड है, so c belongs to, then c is a limit point of I, so since I is closed, so c belongs to I. ये बहुत जगह यूज कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है, c is a point of I. अब बताओ, now for any k belonging to n, ynk is equal to ynk minus xnk प्लस xnk, ठीक है, ये देख सकते हैं, प्लस माइनस xnk कर दिया मैंने, so limit k tends to infinity ynk is equal to limit k tends to infinity ynk minus xnk, right, plus limit k tends to infinity xnk. तो ये लिमिट क्या है, दिस लिमिट इज, व्हाट इज दिस लिमिट, जीरो, ठीक है, ये वाली कंडीशन, क्योंकि हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस yn इज जीरो, सो xnk माइनस yn भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी का सब सीक्वेंस है, ठीक है ना, दिस इज जीरो एंड दिस वन इज c, सो हमारे पास ये c आ गया, सो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ynk converges to c. अब xn के कन्वर्ज कर रहा है c को, yn के कन्वर्ज कर रहा है c को, तो fxn के कहाँ जाएगा, since f is, yes, on I, yeah, so in particular f is continuous at c, so xnk converging to c implies fxnk converges to fc and ynk converging to c implies f of ynk
कन्वर्जेस टू FC। तो दोनों सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। fxnk कन्वर्जिंग टू FC, fynk कन्वर्जिंग टू FC। So limit n tends to infinity, f of x and k is equal to FC is equal to limit n tends to infinity, f of y and k, ठीक है। So this implies limit n tends to infinity, f of x and k minus f of y and k is 0, but f of x and k minus f of y and k is greater than equal to epsilon naught for all k belonging to n। ये फ्रॉम, इसको a मान लो, a लिख दो इसे। so फ्रॉम a, इसको स्टेटमेंट को a कह दो, ठीक है। so फ्रॉम a, फ्रॉम a, so ये b which contradicts, ठीक है ना। ये b को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट से छोटा नहीं हो सकता इनका डिफरेंस, और एक तरफ कह रहे हैं कि लिमिट 0 पे जा रही है। कॉन्ट्रडिक्शन है ना। इसको प्रूव भी कर सकते हो तुम, एप्सिलॉन नॉट को लेस देन कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट 0 है तो एप्सिलॉन नॉट से छोटा मिल जाएगा तुम्हें कोई के, ठीक है। सो कॉन्ट्रडिक्शन which contradicts b, hence our assumption is wrong and f is uniformly continuous on I। This completes तो अगर तुम्हारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है और ना क्लोज्ड इन बाउंडेड इंटरवल, तो वो वहां पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा f जो है कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इन बाउंडेड इंटरवल, तो इट शुड बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। क्लियर? किसी को प्रूफ में या कहीं पे कुछ डाउट है अभी तक तो बता दो। सर इसे कॉन्ट्रेरी से प्रूव किया, वैसे प्रूव नहीं कर सकते। वैसे भी इसी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन से चलोगे ना, अदरवाइज कैसे प्रूव करोगे? सोचो, कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रापोजिटिव अप्रोच से चलने से हमारे पास ये आ गए ना सीक्वेंसेस, तो हम यूनिक कंटिन्यूटी का काम कर पाए। अदरवाइज कंटिन्यूटी का काम कैसे लेते? तो कई जगह कॉन्ट्रापोजिटिव ही चलना पड़ता है, ठीक है। आगे कैसे प्रोसीड करते हैं? हमें शो करना है कि f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन I, तो हम कोई भी एप्सिलॉन उठा लेते, लेकिन एप्सिलॉन से हम फिर क्या करते? कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। कंटिन्यूटी तो पॉइंट के लिए यूज होती है, ठीक है। सो कॉन्ट्रापोजिटिव से ही चलने पे हमें दो ये सीक्वेंसेस मिलेंगी, तो इस पे फिर हम कंटिन्यूटी यूज करेंगे। तो कई जगह जो है कॉन्ट्रापोजिटिव अप्रोच ही काम करती है कि अगर वो नहीं होगा तो तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे कि कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट चलना चाहते हैं तो हम कोई भी एप्सिलॉन ले लेते, फिर एप्सिलॉन से क्या करते हैं हम आगे, क्या करते हैं उसका? कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि कंटिन्यूटी तो पॉइंट पे यूज होती है। अभी हमने कोई पॉइंट फिक्स करा ही नहीं है, समझ रहे हो। कंटिन्यूटी यूज करने के लिए तो पॉइंट का यूज करेंगे ना। अब पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। अब देखो हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी यूज करने के लिए एक पॉइंट सी का एग्जिस्टेंस दिखाई है हमने, एक सी लाए हैं, इस पे कंटिन्यूटी फिर यूज करी हमने। ये देखो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन सी, तो ये यूज करा है। जब तक कोई पॉइंट नहीं मिलेगा हम कंटिन्यूटी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये कंटिन्यूटी इज अ लोकल प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो कंटिन्यूटी लोकल है, तो मतलब जब तक पॉइंट नहीं होगा हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यस, तो इसका मतलब अगर हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दे रखी है तो उससे हम कंटिन्यूटी को डायरेक्ट ला सकते हैं, हाँ। बट इन्वर्स नहीं ला सकते। इन्वर्स इस थ्योरम से कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास इंटरवल को क्लोज्ड एंड बाउंडेड दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। देखो हमने क्या कर दिया, समरी देखो, समरी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। समरी आज हमने क्या करा है, we have shown that uniform continuity
implies continuity, ठीक है. कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये भी कर लिया हमने. एग्जांपल है fx इक्वल टू 1/x ऑन 0 to infinity. सो ये कर लिया हमने. फिर हमने कहा if our domain is closed and bounded interval, ठीक है. अगर हमारा डोमेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है तो देन कंटिन्यूटी implies यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है. इन जनरल ट्रू नहीं है, बट अगर डोमेन हमारा क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है तो कंटिन्यूटी विल इंप्लाई यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. सो दिस वी हैव डन, ठीक है ना. Yes, sir. So let us do one more example. Example is show that gx equal to root x is uniformly continuous on 0 to infinity. इसका प्रूफ बताओ. चलो एक बार रफली करते हैं पहले से. gx माइनस gy स्टार्ट करते हैं. एक बार क्या आता है ये देखते हैं, ठीक है. तो दिस इज रूट एक्स माइनस रूट वाई. तो इसको क्या कर सकते हैं हम, रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है. एक्स नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, वाई नॉट इक्वल टू 0 ले लिया. अभी मीन वाई ये लेके चलिए, ठीक है. सो 0 तो प्रॉब्लम करेगा ही. फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई रूट एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई. अगर x ग्रेटर देन a है और a पॉजिटिव है तो रूट एक्स ग्रेटर देन रूट a हो जाता है, ठीक है ना. एंड सिमिलरली रूट y ग्रेटर देन रूट a हो जाएगा. तो हम ये रूट a से रिप्लेस कर सकते हैं. तो अगर हमारा इंटरवल a टू इन्फिनिटी होता वेयर a इज ग्रेटर देन 0 तो हम इस मेथड से कर लेते उसे. लेकिन जब 0 आ जाएगा इंटरवल में तो हम इसे बाउंड नहीं कर पाएंगे, राइट. अगर ये इंटरवल में 0 आ गया तो इस चीज को हम किसी भी कांस्टेंट से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. दिस इज नॉट बाउंडेड ऑन k, इज नॉट बाउंडेड ऑन 0 टू इन्फिनिटी. ये a टू इन्फिनिटी पे तो बाउंडेड है कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर लेते हैं, बट 0 टू इन्फिनिटी पे इट इज नॉट बाउंडेड. सर एक्स वाई जो 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं तो सर कोई तो नंबर ऐसा होगा जो एक्स वाई से ग्रेटर होंगे. नहीं, अब एक्स वाई तो सारी वैल्यूज दे रहे हैं ना इसमें 0 से इन्फिनिटी पे. तो कुछ भी नंबर लोगे उससे छोटा तो ढूंढ ही लोगे. जैसे 1/x इज नॉट बाउंडेड ऑन 0 टू इन्फिनिटी, सेम ही तो है, उसी तरह का ही तो है. सेम वही प्रूव कर सकते हो, उसी तरह से शो कर सकते हो, ठीक है ना. सो रूट दिस इज नॉट बाउंडेड. सो इसके लिए वो वाला हम ये नहीं कर पाएंगे, gx माइनस जी वाई लेस देन k टाइम्स x माइनस वाई शो नहीं कर पाएंगे ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है. ऑन 0 टू इन्फिनिटी हम नहीं कर पाएंगे ये. You will not be able to find this, ठीक है. क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है ऑन 0 टू a टू इन्फिनिटी पे तो बाउंडेड है 1 बाई रूट रूट ए से बाउंडेड है, ठीक है ना. लेकिन ये इस पे बाउंडेड नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी पे इट इज नॉट बाउंडेड. क्लियर है सबको. इट इज नॉट बाउंडेड ऑन 0 टू इन्फिनिटी. ये शो भी कर सकते हो तुम, ठीक है. शो करने के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू टेक यूज 1/x को शो करने के लिए क्या करते हो, अनबाउंडेड शो करने के लिए ऑन 0 टू इन्फिनिटी. कैसे शो करते हो, यूजिंग आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, ठीक है. सो यू यूज आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी टू शो दिस. सो वैसे ही यहाँ पे भी यूज कर सकते हो. सो दिस इज अनबाउंडेड ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है. सो वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज दिस. सो हम इसको क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस इनटू
2 पोर्शंस, ठीक है। अपने इंटरवल को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। मिटा दूं ये पूरा, सबको समझ आ गया ना अभी तक का हमने जो मैंने डिस्कस करा है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट because this is unbounded on 0 to infinity. So what I will do, I will divide my interval into 2 portions so that एक पोर्शन में हम इसका यूज कर लेंगे, इस वाली टेक्निक का, और एक पोर्शन में हम वो वाली जो अभी थ्योरम करी है उसका यूज करेंगे। So what we will do, we will take let I equal to 0 to 2 and j equal to 1 to infinity, ठीक है। ये इसको a बोल दो। So then a is equal to I union j, ठीक है। तो पहले हम शो करेंगे कि इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दिस, इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दिस, फिर हम इन दोनों की कंटिन्यूटी को यूज करके कह देंगे कि ए पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्लियर? हाँ हाँ। यहाँ 0 से 2 लेने का कोई स्पेसिफिक पर्पस है क्या? नहीं, देखो बस हमें क्या करना होता है ना, ये दो पॉइंट्स को इंटरसेक्शन ऐसे लेना होता है कि कॉमन, कुछ पॉइंट्स कॉमन हो जाए। मतलब मैंने बताया ना कि a टू इन्फिनिटी कुछ भी a ले सकते हो यहाँ पे, a एनी a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कुछ भी a+1 या a, मतलब कुछ भी बस a से बड़ा नंबर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू a, ठीक है। ये मतलब ऐसा ले सकते हो, इस तरह से भी ले सकते हो, I इक्वल टू 0 to b एंड j इक्वल टू a टू इन्फिनिटी सच दैट a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, a के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका देखेंगे कि क्यों इस तरह का ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या बस अच्छे से दिखने के लिए हम, क्योंकि हमें कोई भी लेना है तो हम क्या करते हैं 0 to 2 ले लेते हैं एंड काम वही करना है जो अभी मैंने बताया ना, 1 to infinity कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। बट यू कैन टेक एनी नंबर, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बस ये जो है ये चीज होनी चाहिए कि a शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन b, ठीक है। मतलब सो उससे क्या होगा, अब ये इन दोनों में मतलब कुछ इंटरसेक्शन कॉमन होना चाहिए, मतलब मोर देन 1 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सो इंटरवल मतलब इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। सो मतलब कि I इंटरसेक्शन j मस्ट बी एन इंटरवल, मस्ट बी सम इंटरवल, बस इस तरह से चूज करना है हमें पॉइंट्स, तो ये बेस्ट तरीका है क्योंकि इससे अच्छे से दिखता है, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट अब क्या है हमारे पास, gx इक्वल टू रूट एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 0 to 2, ये तो हर जगह ही कंटिन्यूस होता है रूट एक्स, हमने प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। सो 0 to 2 पे कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस ऑन आई लिख लो, क्लियर। चलो नहीं तो 0 to 2 रहने दो, क्लोज्ड इंटरवल दिखेगा। सो इट इज कंटिन्यूस ऑन 0 to 2, सो उससे क्या हो जाएगा, बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम, बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम अभी हमने करा है, हमारे पास क्या आ जाएगा कि g इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन i, ठीक है। so g is uniformly continuous on I, ठीक है। so mark this as, ये क्लियर है ये यहाँ तक, क्योंकि ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है और इस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले। सो बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम g is uniformly continuous on I, क्लियर। क्लियर है, यस या नो बोल दो। Yes sir. Okay, now we will show that g is uniformly continuous on j. So next
we claim that G is uniformly continuous on J. So क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए we will take any epsilon greater than 0. So let epsilon greater than 0 be any real number. ठीक है? So what we have to do? We have to find delta greater than 0 such that for any xy in J, x minus y less than delta should imply gx minus gy less than epsilon. So consider for any xy belonging to J, gx minus gy. So what should be this? ये क्या हो जाएगा? Root x minus root y. So this is root x minus root y, root x plus root y upon root x plus root y. So अभी 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं है because we have j is equal to 1 to infinity. So there is no issue of 0. So this is equal to 1 by root x plus root y क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं and x minus y. So what should be this? This is less than, इसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको 1 से. So 1 by 2 times x minus y. Why? Because x is greater than 1, y is greater than 1. So this implies root x is greater than 1 and root y is greater than 1. So we have used this. So what delta we should choose? 2 epsilon. Yes. So let delta equal to 2 epsilon greater than 0. Then it is clear that for any xy belonging to J, which is 1 to infinity, x minus y less than delta implies gx minus gy is less than epsilon. Hence G is uniformly continuous on J. ठीक है? सो J 1 to infinity की जगह कुछ भी हो सकता है, बस अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो तुम प्रूव कर सकते हो इस मेथड से, लेकिन अगर 0 हो जाता है तो नहीं प्रूव कर पाओगे. ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Okay. So now we have shown this is B. So we have shown that G is uniformly continuous on I and J. So next we have to show that G is uniformly continuous on A. So A and A is equal to I union J. Okay. So claim G is uniformly continuous on A. अब बताओ इसको कैसे करेंगे? We will start with, so let epsilon dash greater than 0 be any real. Epsilon dash इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि we have already taken one epsilon. ठीक है ना पीछे प्रूफ में, इसलिए. So we have to find, what we have to find? We have to find delta dash greater than 0 such that for any xy in A, x minus y less than delta dash should imply क्या होना चाहिए? gx minus gy should be less than epsilon dash. ये चाहिए हमें. So अब बताओ क्या करेंगे? We will use the continuity of f at I and f at j. ठीक है? So since f is g, since g is uniformly continuous on I, so there exists delta 1 greater than 0 such that for any xy belonging to I, x minus y less than delta 1 implies gx minus gy is less than epsilon dash. Again इसको स्टार बना. ठीक है?
now again, since G is uniformly continuous on J, so for above epsilon dash greater than 0 there exists delta 2 greater than 0, such that for any xy belonging to J, x minus y less than delta 2 should imply gx minus gy is less than epsilon dash. अब बताओ, तो ये डबल स्टार हो गया। तो क्या डेल्टा लें हम इसके लिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या डेल्टा लें? क्या डेल्टा डैश को क्या लें हम? minimum of delta 1 delta 2. Let delta dash is equal to minimum of delta 1 and delta 2. Then for xy belonging to A, x minus y less than delta dash implies x minus y is less than delta 1 and x minus y is less than delta 2. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा? अगर लेस देन डेल्टा 1 है तो ये स्टार यूज करना है हमें, राइट? वी हैव टू यूज दिस स्टार। ठीक है, तो स्टार को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? x माइनस वाई लेस देन डेल्टा 1, लेकिन और साथ में एक और चीज चाहिए हमें, we want this also that xy should be in I और यहाँ पे xy should be in J। तो ये कैसे होगा? ये इसको कैसे करेंगे? ये तो आ गया कि क्योंकि xy हमने A में लिया है, तो ये xy कहीं भी हो सकता है, I में भी हो सकता है, J में भी हो सकता है, ये xy कहीं भी हो सकता है। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 है तो हम कैसे वो करेंगे कि ये या तो I में ही हो या J में ही हो? समझ नहीं आया सर, इनके क्वेश्चन में लेना। देखो अभी तो हम कुछ नहीं किए, हमने कंटिन्यूटी से ये लिया है ना, I के ऊपर ये आ गया हमारे पास कंडीशन, स्टार जो है I के ऊपर है, ये तो समझ आ गया ना, ये वाला स्टेप। G यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है I पे, तो एक डेल्टा 1 मिलेगा सच दैट फॉर एनी xy इन I x माइनस y इज लेस देन डेल्टा 1। ये आया समझ में कि नहीं? ये वाला, ये तो बाय डेफिनेशन है। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास एक डबल स्टार आ गया, ये भी अगेन बाय डेफिनेशन है, लेकिन ये वाली कंडीशन जो होल्ड कर रही है वो I पे कर रही है, ये वाली कंडीशन जो होल्ड कर रही है ये J पे कर रही है। अब मैंने क्या करा है? अब मैंने उठाया xy इन A, क्योंकि मुझे xy इन A चाहिए, मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। Yes, so I want to satisfy this condition, so xy should be in A। ठीक है, so such that x minus y less than delta dash should imply gx minus gy less than epsilon dash। तो अगर मैं delta dash equal to minimum of these two लेता हूँ, तो x minus y less than delta dash will imply that x minus y is less than delta 1 and x minus y is less than delta 2। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा xy जो है वो A के अंदर है, I के अंदर नहीं है, तो वो कहीं भी हो सकता है A के अंदर, लेकिन ये कंडीशन जो होल्ड कर रही है, स्टार वाली होल्ड कर रही है, वो I पे कर रही है, और ये डबल स्टार वाली जो कर रही है वो J पे कर रही है। तो मैं कैसे उसको करूं कि ये जो है ये वाला अगर मेरा x माइनस वाई लेस देन डेल्टा 1 है तो ये I पे होल्ड करे, और x माइनस वाई अगर लेस देन डेल्टा 2 है तो ये J पे होल्ड करे। ऐसा ना हो कि x जो है तुम्हारा I से आ रहा है और y जो है तुम्हारा J से आ रहा है, तो इसको कैसे हम हैंडल करेंगे? X and Y belongs to I intersection J. नहीं, वो नहीं ले सकते ना, A पे ही लेना पड़ेगा हमें। I हमारा है 0 to 2, J हमारा है 1 to infinity। ठीक है, सो जैसे मैं ये बना के दिखाता हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये infinity है। ठीक है, सो अगर मेरा x ऐसा ना हो ना मेरा कि x इधर से आ जाए और y इधर से आ जाए, सो दैट x माइनस ये x हो गया, सपोज ये y हो गया, तो x माइनस वाई तो लेस देन डेल्टा डैश हो गया, बट ये कंडीशन ना हो, क्योंकि ये होगा तो मैं नहीं क्लेम कर पाऊंगा। तो बताओ ये क्यों, हम इसको कैसे कंट्रोल करें?
डायग्राम से देख के बताओ, ये y कहाँ पे होना चाहिए, इससे पहले होना चाहिए, 2 से पहले कहीं भी, या x इधर होना चाहिए, तो क्या कब यस minimum of 1 यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 डाल देंगे, ठीक है ना। अगर 1 डाल दिया तो अब अगर ये x इधर है i के अंदर, तो y को भी i के अंदर ही होना पड़ेगा, i से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। ठीक है, इसीलिए मैं ये कर रहे थे हम। तो अगर तुम जैसे ए बी लोगे इंटरवल, तो यहाँ पे b माइनस ए लेना पड़ेगा, तो ये जो है 1 लिख लो। तो एक्स वाई या तो i के अंदर होगा या एक्स वाई j के अंदर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि x i के अंदर है लेकिन j के अंदर नहीं है, और y j के अंदर है लेकिन i के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि x जो है i माइनस जे में हो और y जो है j माइनस i में हो, या तो दोनों i के अंदर होंगे या दोनों j के अंदर होंगे। क्लियर। तो हमारे पास 3 चीज आ गई, यहाँ से ये आ गया। सो आइदर एक्स वाई बिलोंग्स टू i और एक्स वाई बिलोंग्स टू j, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग में, दोनों एक में होंगे, ठीक है। सो देन फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार it follows that क्या हो जाएगा, x माइनस वाई लेस देन डेल्टा डैश implies gx minus gy is less than epsilon dash. Okay, so this implies g is uniformly continuous on, so this completes the